Good afternoon, class. Good afternoon, class. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Is the screen visible? Yes, everyone, is the screen visible? Yes. Okay. Let's wait for 4 minutes. Let everybody be joined. Or the strength is like that only. Only 9 participants are there. Just wait for 2-3 minutes more. Okay, class. So we had covered all the revolutions, right? So today we are going to discuss the Constitution of India was made by borrowing models and principles from many countries, including United Kingdom and America. राइट अर्लियर मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितनी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रेम हुआ है, राइट, हमने सारी चीजें ऐसा नहीं है खुद से फ्रेम करी हैं. एक्चुअली वी हैड टेकन समथिंग फ्रॉम सम अदर कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज. ठीक है, हर चीजें हमने क्या करी है, बोरो करी है कहीं ना कहीं से. ठीक है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ यूनाइटेड किंगडम से भी लिया है एंड अमेरिका टू. तो वी विल डिस्कस दैट थिंग टुडे कि कहाँ से हमने क्या क्या चीजें बोरो करी हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन. अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मेड solely by us, yet it is made by the borrowings from different countries. The Indian Constitution is the longest constitution of any independent country in the world. What is the Indian Constitution? Is the longest constitution in the world, right? Due to its varied sources of several features, the Constitution of India is known as a bag of borrowings. Means मैंने आपको पहले भी बताया कि we have several features and all the features are taken from different constitution of different countries. If we are borrowing the different things from different constitutions, then our constitution is known as a bag of borrowings. Means हमारा जो constitution का bag है उसमें क्या है, बहुत सारी चीजें हमने borrow करी हुई हैं. On 26 November 1949 it was adopted and came into force on 26 January 1950. हमने अडॉप्ट कब करा था कॉन्स्टिट्यूशन 1949 को, और फोर्स में कब आया, एग्जीक्यूशन में कब आया, इन 26 जनवरी 1950. This was the day when all the members of the Constituent Assembly signed the document. It is the day when all the members signed the document कि हाँ ठीक है, now our constitution is in a effective mode, is in a action mode. Fine. Next is the constitution is a set of laws and rules that set up the machinery of the government of a state, which defines and determines the relation between the different institutions and components of the government, the executive, the legislature, the judiciary, the central and the local government. Means
As we all know that what is in our constitution, it defines all the laws and rules to govern the country, which has to be followed by all the citizens of the country, so that a proper admin can be possible in the whole country, which defines and determine the relation between the different institutions, maybe any state, central government, components of the government, means different offices of the government, the executives, the legislatures, the judiciary, the central government, and the local government too. The Indian constitution is unique in its content and spirit. Although it had picked up many best features from other constitutions of the world, the Constitution of India has several silent features that distinguish it from the constitution of other countries. मतलब we had made several silent features to in lieu of taking the borrowings, right? Any people criticized that Indian constitution is a bag of borrowings of just paper and scissor, but बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज करा कि हाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हमने क्या करा है, जैसे आजकल हम बोलते हैं नेट से कट कॉपी पेस्ट करा है, एट दैट टाइम हमने बोला कि पेपर और सीजर वर्क है, बस और कुछ नहीं है. It is true that it had borrowed some features but was drafted according to the historical perspective, geographical diversity, culture and traditional characteristics of India. हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में किस किस चीजों का ध्यान रखा, क्या क्या ध्यान रखा कि वो हमारे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग हो, हमारी जो भी हिस्ट्री रही है उसमें हमने जो जो प्रॉब्लम्स फेस करी हैं, एंड वी फील लाइक कि हाँ आगे फ्यूचर में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, उन सब चीजों को ध्यान में. ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी मीन्स in every state we have a different type of climate. So according to the climate, according to the availability of resources of that particular state, we had made our constitution according to that. Culture and traditional characteristics of India. Culture and traditional characteristic of India means कि इंडिया के अंदर कैसा कल्चर है, क्या क्या चीजें इंडिया के अंदर फॉलो होती है, ठीक है, और हमारा ट्रेडिशन क्या है, हमारी चीजें क्या चलती आ रही है, हमारे यहाँ पे किस चीज को सही माना जाता है, किस चीज को गलत माना जाता है, व्हाट इज द बिहेविंग स्टाइल ऑफ ओवर देयर. तो हमने उसी के हिसाब से क्या करा है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करा है. The chairperson of the drafting committee, Dr. Ambedkar, has said in this regard, as the occasion that the draft constitution has reproduced a good part of the provision of the Government of India Act 1935, I make no apologies. Means कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे मिस्टर डॉक्टर अंबेडकर, उन्होंने बोला कि हाँ मुझे इस बात में कोई भी डाउट नहीं है कि आई हैड प्रोवाइडेड एक रिप्रोड्यूस करा है, मैंने एक चीज बनाई है दैट इज बेस्ट फॉर अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आई मेक नो अपोलॉजीज. इस चीज में भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हाँ मैंने कहीं से कोई चीज उठाई है या कहाँ से कोई चीज. देयर इज नथिंग टू बी अशेम्ड इन बोरोइंग. किसी से कुछ लेने में कुछ गलती नहीं है, ठीक है. जैसे हम भी क्या करते हैं, कोई रिसर्च पेपर लिखना है हमें या कोई नोट्स फ्रेम करने हैं तो हम नेट से सर्च करते हैं. नेट से हमने 10 साइट से सर्च करा, 10 साइट से हमने मैटर कलेक्ट करने की कोशिश करी. इन दैट अगर हमें लगता है कि हाँ इसमें ये चीज बेस्ट है, उसमें वो चीज बेस्ट है, या उसकी वो चीज बेस्ट है, तो हम क्या करते हैं, हम सारी अलग अलग चीजों का सैंपल करते हैं, राइट. तो ऐसा तो नहीं होता कि एक पर्टिकुलर शॉप की सारी चीजें खाने में अच्छी होंगी, नहीं होती ना. हम क्या करते हैं, कहीं से कुछ लेते हैं, कहीं से कुछ लेते हैं, कहीं से कुछ लेते हैं. तो उन्होंने भी कहा कि देयर इज नॉट एनीथिंग बैड इन दैट कि इफ आई एम बोरोइंग गुड समथिंग फ्रॉम अदर्स. अगर हमें किसी से कुछ अच्छा सीखने के लिए मिल रहा है तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है. अगर हमारी कंट्री में किसी चीज को लेके मैनेजमेंट अच्छा है और हम अगर किसी दूसरी कंट्री में किसी चीज को लेके मैनेजमेंट अच्छा है और उसको हम अपनी कंट्री में इम्प्लाई करना चाहते हैं, दैट इज नॉट अ बैड थिंग. We should always encourage those things which are good for our country, which are good for us. अगर हमें लगता है किसी का होम मैनेजमेंट बहुत अच्छा है तो हमें अपने घर में भी वो चीजें, वो टेक्निक्स यूज करनी चाहिए, राइट. The chairperson of the right, there is nothing to be ashamed in borrowing. It involves no plagiarism. पैराग्रिज्म मतलब होता है कि जस्ट मैंने पीएचडी करी थी, तो पीएचडी में क्या होता है कि जो हमारी थीसिस होती है फॉर दैट वी मे ओके. कोई मुझे बताएगा पैराग्रिज्म का मतलब क्या होता है? आप लोग तो सब सीएस ब्रांच के हैं. यस, कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैराग्रिज्म? मैम किसी सोर्स से कॉपी करके उसे अपना कंटेंट बताना.
राइट। बेसिकली पैराग्रिज्म जो है ना एक सॉफ्टवेयर का नाम है। इस सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि जैसे हमने अपनी थीसिस बनाते हैं, हमने अपना कोई भी मटेरियल बनाया तो उस हम इस सॉफ्टवेयर में अपलोड करते हैं। सॉफ्टवेयर में अपलोड होने के बाद क्या होता है कि जो भी उसमें मैटर कॉपी किया हुआ होता है ना हमने कहीं से भी, वो सारा मैटर अंडरलाइन हो जाता है और जो हमारा ओरिजिनल मैटर होता है वो रह जाता है। तो उसमें हमें ये पता लगता है कि कितनी चीजें हमने कॉपी करी है कहीं से भी और हमें अब कितना मटेरियल अपना सॉर्ट करना है। यही चीज यूनिवर्सिटी यूज करती है फॉर चेकिंग द थीसिस ऑफ द रिसर्च स्कॉलर्स, कि उन्होंने ऐसा तो नहीं है कहीं से कोई कॉपी उठाई है और बस जस्ट कॉपी करके ले आए। ठीक है, तो डॉक्टर अंबेडकर ने यही बोला कि देयर इज नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ इन बोरोइंग, इट इन्वॉल्व्स नो पैराग्रिज्म। ठीक है, उसमें ऐसा नहीं है कि वो कॉपी पेस्ट करा गया है। कई बार ऐसा होता है कि हमने भी पहले देखा, अभी तो मुझे नहीं पता कि कुछ घरों में होता है नहीं होता है, बट क्या होता था कि किसी के घर शादी का कार्ड आता था ना तो इट लुक्स वेरी अट्रैक्ट, किसी का कार्ड अगर बहुत अच्छा लगा तो उसको हम रख लेते थे उठा के। हमारे किसी नियर बाई की रिलेटिव की शादी हो रही होती थी तो कुछ होता था तो कि चलो उसको दिखाएंगे कि सब ऐसा कुछ कार्ड बनवाना, इट इज लुकिंग वेरी नाइस। तो ऐसे ही सेम था, उन्होंने भी यही चीज यूज करी थी कि ठीक है अगर किसी की हमें कोई चीज अट्रैक्ट कर रही है तो हम उसको ले लेते हैं, बट उसमें कुछ चेंजेस उन्होंने भी करे अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग। अगर उन्होंने वहां से कोई चीज उठाई, उसके बाद उठाने के बाद उसका एक मेन हेडिंग लिया और जो उसकी सब डिटेल्स थी वो अपने कंट्री के अकॉर्डिंग चेंज करी। सो इट इज नॉट ऑल द वर्क ऑफ पैराग्रिज्म। नोबडी होल्ड्स एनी पेटेंट राइट्स इन द फंडामेंटल आइडियाज ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि किसी के पास भी ऐसा राइट नहीं है कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे पूरा अधिकार जमा के रखे। मीन्स कि अगर एक चीज एक कंट्री में फॉलो हो रही है तो वो दूसरी वो ही सेम चीज दूसरी कंट्री में फॉलो नहीं होगी। क्या किसी भी कंट्री में ऐसा राइट दिया हुआ होगा किसी भी सिटीजन को दैट यू विल क्या करोगे आप, हार्म पहुंचाओगे अपनी कंट्री के रिसोर्सेज को? किसी भी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा होगा। अगर ऐसा किसी ने किया है तो उसके लिए पनिशमेंट जरूर होगी। सो दिस इज ऑल व्हाट, कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो चीज एक कॉन्स्टिट्यूशन में सही है वो दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन में सही नहीं हो। दिस इज व्हाट मिस्टर डॉक्टर अंबेडकर ट्राइड टू से। नेक्स्ट इज लिस्ट ऑफ बोरोड फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहला है हमारा ब्रिटेन। ब्रिटेन से हमने लिया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, कैसे जो भी हमारे पार्लियामेंट के सारे प्रोविजंस हैं दैट वी ऑल हैड टेकन फ्रॉम ब्रिटेन। रूल ऑफ लॉ, कि लॉ कैसे करना है, कैसे कैसे सब चीजें लीगल टर्म्स में डिफाइन होनी है, दैट इज ऑल टेकन फ्रॉम ब्रिटेन। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, यस लेजिस्लेटिव प्रोसीजर भी हमने कहाँ से लिया है, सारा जो भी हमारा लीगल इश्यूज है वो सारा हमने लिया है ब्रिटेन से। सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप आपको पता ही है जो हमें मिली हुई है, और 1 पर्सन काउंट्स 1 वोट। ठीक है, एक ही जगह की आप सिटीजनशिप ले सकते हो, आई एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया, राइट। कैबिनेट सिस्टम, कैबिनेट सिस्टम आपको पता है दैट इज द मिनिस्टर्स, राइट, कि कैसे कैसे हमें अपने मिनिस्टर्स बनाने, कैसे कैसे हमें एक चीज को कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है, इंडिया को डिफरेंट डिफरेंट अथॉरिटीज में कंपोनेंट्स में कैसे डिवाइड करना है ऑन द बेसिस, जैसे हमने एजुकेशन मिनिस्टर बनाया, एचआर मिनिस्टर है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर है हमारे, और finance minister. This is all called the cabinet system. Next is prerogative rights. Prerogative rights क्या होते हैं? Can anybody tell me? Yes. Prerogative rights. This is the special right which only 1 person has a privilege of that. ये बिल्कुल स्पेशल राइट होता है जो एक ही पर्सन के पास होता है, उससे ज्यादा किसी के पास नहीं होता। लाइक प्राइम मिनिस्टर के पास जैसे हमारे राइट है टू डिक्लेयर, सॉरी प्रेसिडेंट के पास है डिक्लेयर एन इमरजेंसी, राइट, उसकी आपकी सेंटेंस की सजा को माफ करने का। तो एक ही बंदे उस किसी एक को उसकी प्रिविलेज मिली होती है उस राइट की, तो उसको हम बोलते हैं प्रीरेरोगेटिव राइट्स। 7th है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। पार्लियामेंट के अंदर जो भी हमारे प्रिविलेज होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं, दैट इज ऑल सेट फोर्थ बाय द ब्रिटेन। नेक्स्ट इज बाइकैमरलिज्म। यस, व्हाट इज द बाइकैमरलिज्म? ये मैंने पहले भी बताया आपको। यस, व्हाट इज बाइकैमरलिज्म? Two houses. Yes, having two houses. Our
Our constitution is divided in two houses, right? Lok Sabha and Rajya Sabha. Next is Ireland. Ireland से हमने लिया है directive principles of state policy, which I have told you earlier. Second है method of election of the president, कि कैसे हम अपने president को elect करेंगे. What is the way of election of president, right? Next is members nomination to the Rajya Sabha by the president. By president कैसे nominate करेंगे members of Rajya Sabha. नेक्स्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हमने लिया इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. व्हाट यू मीन बाय इम्पीचमेंट? इम्पीचमेंट का मतलब क्या होता है? इट इज वेरी लीगल टर्म और बहुत ज्यादा कॉमन यूज होती है. यस, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. क्या हमारी कंट्री में कभी ऐसा कुछ हुआ है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट? इंडिया में कभी नहीं हुआ है. इंडिया में नहीं हुआ है कभी भी. यस, इम्पीचमेंट का मतलब होता है बेसिकली किसी को किसी के टेन्योर से पहले हटा देना. दैट इज कॉल्ड द इम्पीचमेंट, राइट? हमारे इंडिया के अभी तक का रिकॉर्ड रहा है फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू नाउ कि जितने भी प्रेसिडेंट्स आए हैं दे हैव कंप्लीटेड देयर ऑल इयर्स. लाइक 5 इयर्स के लिए अगर आया है कोई तो उसने 5 इयर्स अपने कंप्लीट करे हैं. प्राइम मिनिस्टर तो बहुत ऐसे हैं जो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए बने, जैसे अवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो थे मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, वो भी ऐसे ही थे. बहुत छोटे छोटे टेन्योर के लिए बने थे, शायद 2 बार. तो बट हमारे प्रेसिडेंट की हिस्ट्री बिल्कुल अच्छी है. अभी तक कभी भी ऐसी जरूरत नहीं पड़ी कि हमें अपने प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट करना हो, उनके जल्दी हटाना पड़े. ठीक है. सेकेंड है फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट. All the functions, powers, duties and rights which have been given to the president and vice president are taken from the यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की. जो भी उनकी पावर्स हैं, जो भी उनके राइट्स हैं, ड्यूटीज हैं, दैट ऑल हैज टू बी सेट फोर्थ बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका's कॉन्स्टिट्यूशन. थर्ड इज रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस. ठीक है, कैसे हटाना है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को और हाई कोर्ट के जजेस को. इट इज नॉट एन इजी टास्क टू रिमूव देम. दे आर द मतलब वेरी पावरफुल पर्सन ऑफ द सोसाइटी. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन से हैं जो लोग लॉ जानते हैं, जो लोग लॉ के साथ खेल रहे हैं. बेसिकली दीज आर द पर्सन हु आर प्लेइंग विद द लॉ. ठीक है, उनका डेली का काम होता है इन लॉ वाली पजल्स को सॉल्व करना. केसेस आते हैं, उनको सॉल्व करते हैं. तो दे हैव तो वो गवर्नमेंट को भी उलझा सकते हैं इन चीजों में. तो देयर इज ऑल्सो अ प्रोसीजर फॉर द रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एंड ऑल द स्टेप्स, all the procedure has to be taken from USA. Next is fundamental rights. Fundamental rights क्या होते हैं हमारे? Fundamental rights मैंने आपको बताया कि as a citizen of India I have some rights to enjoy. ठीक है, right to freedom of expression. ठीक है, right to education. तो जितने भी हमारे सारे rights हैं fundamental rights, that is all taken from USA. Judicial review. Yes, judicial review. Judicial review का मतलब होता है जो भी डिसीजंस लिए गए हैं उन सब में जो भी हमने लीगली चीजें करी हैं उन सबको, मतलब जैसे कोई भी डिसीजन लेना विदाउट थिंकिंग कि उसके इफेक्ट बाद में क्या होंगे. ठीक है, जैसे हमने क्या करा कि कोई भी सोसाइटी के लिए डिसीजन लिया कि हाँ अब से हम जीएसटी चार्ज करेंगे या कोई एनी अदर फॉर्म ऑफ टैक्स चार्ज करेंगे. उससे हो सकता है नॉर्मल पब्लिक पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा, उनके पॉकेट से बहुत ज्यादा पैसा निकल रहा हो, बट इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक. ठीक है, हमने उस चीज का कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देखा, कुछ नहीं देखा. जितने भी हमारे लीगल पर्पस है बस उनको हमने क्या कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया, उन चीजों को एक्शन में ला दिया. दैट इज कॉल्ड द जुडिशियल रिव्यू. डिसीजन रिलेटिंग, जैसे एग्जांपल डिसीजन रिलेटिंग टू प्रिजनर्स राइट. प्रिजनर्स राइट मतलब कि जो लोग जेल में रहते हैं उनका क्या क्या राइट होता है, वो क्या क्या कर सकते हैं. नेक्स्ट इज फंडामेंटल rights, judicial review and independence of judiciary. Independence of judiciary, how will you describe that word? Independence of judiciary. Judiciary तो already इतनी powerful है, फिर independence कैसे हो गई उसकी? Yes, हमारा judiciary. ये आपको yes बताओ आयुष. मैम ये आपको एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर पे डिपेंडेंट नहीं है, तीनों अपने इंडिपेंडेंटली काम करते हैं अपना अपना.
यस यस यस, इट मीन्स कि कहीं किसी भी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है। आपने भी सुना होगा, न्यूज में भी देखा होगा कि किसी भी गवर्नमेंट के ऊपर केस चल सकता है। जैसे अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोमिस करे या कुछ भी करा, उसने कहा कि हम ये देंगे, बट सुप्रीम कोर्ट हैज आई ऑन दिस गवर्नमेंट। तो वो क्या करते हैं कि वो उसके कंट्रोल में नहीं है, ना दिल्ली गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में। They have their own system. They are not coming under the influence of any political party, any type of government which is under the power. They are just working as a independent system. Independent कहते हैं ना किसी को कि independent हो जाओ, अपने आप करो सब कुछ। So that is what the judicial system do. They have their own rights, decision, ठीक है, the ability of courts and the judges to perform their duties free of influence or control. किसी का इन्फ्लुएंस और किसी का कंट्रोल उनके ऊपर नहीं होता। नेक्स्ट, द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यस, प्रियम्बल क्या कहता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का? सोवरेन सोशलिस्ट, excuse me, sovereign, socialist, secular and democratic republic. These are the 4 words which have been described by the preamble of the Constitution. Next is Canada. We have taken many things from the Canada. That is, first is centrifugal form of federalism, where the center is stronger than the states. Means जो सुप्रीम कमांडर है हमारा, सुप्रीम कमांडर इज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड the forces known as the state are under control him. अगर सेंटर ने कोई डिसीजन ले लिया है as a part of considering the whole nation, तो that should not be that should be followed by every state. तो हमेशा जो powers हैं वो सेंटर की ज्यादा रहेंगी in comparison to state. तो centrifugal forces का मतलब होता है यूनाइटरी को चेंज करना धीरे धीरे in the form of feeder. Next is residuary powers rest with the सेंटर। यस, सेंटर के पास ही सबसे ज्यादा पावर रहेंगी। सेंटर अपॉइंट्स द गवर्नर एट द स्टेट। आपको पता है हर स्टेट में गवर्नर होता है। गवर्नर इज द पर्सन हु हैज द राइट टू गिव ओथ टू दैट पर्टिकुलर मिनिस्टर और टू द पर्टिकुलर मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट। ठीक है, गवर्नर ही कौन दिलाते हैं? शपथ दिलाते हैं उस स्टेट के मिनिस्टर को। और गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, गवर्नर का अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होता है। कोई भी स्टेट मिनिस्टर गवर्नर को अपॉइंट नहीं करते हैं। तो ये भी चीज हमने कहां से उठाई है? ये हमने उठाई है कनाडा से। राइट, सेंटर अपॉइंट्स द गवर्नर एट द स्टेट्स। एडवाइजरी जुडिशल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, यस, इसका कोई बताएगा मुझे क्या होगा? एडवाइजरी जुडिशिफिकेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यस, मैम सुप्रीम कोर्ट किसी भी मतलब अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को एडवाइस कर सकता है किसी भी कोर्ट केस के रिलेटेड। सपोज कोई भी लोअर कोर्ट है, फेलियर तो नहीं कह सकते उसको, डायलेमा है, एम्बिग्यूटी है। जैसे हम क्रिकेट मैच देखते हैं तो उसमें थर्ड अंपायर का डिसीजन जब होता है, जब कुछ डायलेमा होता है, जो फील्ड में अंपायर होता है उसको कि हाँ वेदर ही इज आउट और नॉट। तो लाइक इन द सेम वे कि जब उनके अंदर कुछ कैपेबिलिटी की प्रॉब्लम, कैपेबिलिटी नहीं, एक डायलेमा या कुछ भी एम्बिग्यूटी होती है केसेस को लेके कि हाँ इस मैटर पे हमें कैसे डिसीजन लेना है सो दैट द सोसाइटी वुड नॉट बी सफर्ड। तो इन दैट केस क्या करते हैं, जो लोअर कोर्ट होती है वो उसमें डिसीजन ले सकती हैं हायर कोर्ट का। राइट, हायर कोर्ट से पूछ सकती हैं कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें क्या करनी चाहिए, क्या कैसे कैसे एक्शन लेना चाहिए हमें। तो ये भी हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है। सो वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द ब्रिटेन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, हमारी रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप एंड कैबिनेट सिस्टम, प्रेरोगेटिव राइट्स। आपके प्रेरोगेटिव राइट्स मैंने बताया था, स्पेशल राइट होते हैं आपके, जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज होता है, बाइकैमरलिज्म, 2 हाउसेस, राइट, आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, मेंबर्स नॉमिनेशन टू द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट, यूनाइटेड स्टेट्स से इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट,
functions of president and vice president, removal of Supreme Court and High Court judges, fundamental rights, judicial review, independence of judiciary, right? Canada say centrifugal force of federalism, where the central is stronger than the state, residue power vests with the center, center appoints the governor at the states, advisory jurisdiction of the Supreme Court. Australia से लिया है concept of concurrent list. Yes, there is a list provided in the constitution where there are the number of legislative powers which have been defined in this. So it has been taken by the Australia. Article 108 joint sitting of two houses. ठीक है, कोई भी एक ऐसा प्रोविजन है जिसमें दोनों हाउसेस की सिटिंग होती है या उनसे रिलेटेड है, वो आर्टिकल 108 भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है. फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स की फ्रीडम करना कि कहीं भी आप व्यापार कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, और उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं that has all been taken from Australia. Now Russia, USSR, फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है हमारी? द आइडिया ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एक्सप्रेस्ड इन द प्रेम्बल. प्रेम्बल में हमने तीन चीजें एक्सप्रेस करी हैं, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक. ऑल्सो जो भी हमने प्रेम्बल में सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल भी डिस्क्राइब करे हैं, दैट हैज बीन ऑल बीन टेकन फ्रॉम रशिया. नेक्स्ट इज फ्रांस. फ्रांस से लिया है कंसेप्ट ऑफ रिपब्लिक. Yes, what do you mean by republic? ले तो लिया हमने, कोई भी बताओ रिपब्लिक का मीनिंग. रिपब्लिक बेसिकली स्टैंड्स फॉर जहाँ पे कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, मींस वहां पे इलेक्शन होते हैं. ठीक है, इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन होने के बाद एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है वहां पे. ठीक है, मतलब जैसे हमारी कंट्री में एक इलेक्शन कमीशन बना है, इलेक्शन कमीशन के थ्रू डेट्स आती है, डेट्स के बाद इलेक्शन होते हैं, उसके बाद हमारी गवर्नमेंट फ्रेम होती है, और जो गवर्नमेंट बनती है वो हमारा एक इलेक्टेड मेंबर ही होता है. नेक्स्ट, आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी कंटेन्ड इन द प्रेम्बल. ये सारे आइडियाज, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, दैट ऑल केम फ्रॉम फ्रांस. नेक्स्ट इज जर्मनी. जर्मनी से लिया है हमने फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी. कि देखो, अभी हमने फंडामेंटल राइट्स तो कहाँ से लिए थे? फंडामेंटल राइट्स लिए थे हमने यूएसए से, बट उनके अंदर हमने एक नया प्रोविजन बनाया, डेट इज ऑफ इमरजेंसी. वो हमने लिया जर्मनी से. जर्मनी से लेने में सस्पेंडेड, जब भी आपको पता है हमारे देश में इमरजेंसी लगती है, जिसे हम आपातकालीन स्थिति कहते हैं. आपने भी देखा मेट्रो में और बहुत सारी जगह पे आपातकालीन द्वार लगा होता है कि कुछ भी ऐसी सिचुएशन आ जाए जो देश के अंदर कंट्रोल ना हो, जैसे वॉर हो जाए, वॉर हो हमारे देश में, या कोई पैंडेमिक ऐसी हो जो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए. ठीक है, तो ऐसे देश, ऐसे टाइम पे जो हमारे राइट्स होते हैं, फंडामेंटल राइट्स, उन्हें गवर्नमेंट अपने पास ले लेती है. उस टाइम अगर आप उन फंडामेंटल राइट्स का यूज करते हो तो यू आर डूइंग एन इलीगल एक्टिविटी, राइट. साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका से लिए इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्य सभा, कि हाउ वी विल इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द राज्य सभा. सेकेंड इज अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कैसे करे जाते हैं. ठीक है, उसके बाद है जापान. जापान से concept of procedure established by law, right. So these are all the things which has taken from other constitutions, right. तो इसमें हमारा कवर्ड हो गया है यूनाइटेड किंगडम एंड अमेरिका. So this is all for today. Just give me your attendance. COI student. जो स्टूडेंट्स प्रेजेंट है ना, केवल वो मुझे अपना नाम बोलते रहो, मैं उनकी अटेंडेंस लगा लेती हूँ, बाकी सबका एब्सेंट नाम बोलते रहो. 74. एक मिनट, 1 by 1. ओके. अंकुर शर्मा 22. बेटा वेट करो. यस प्रशांत, 1 मिनट. प्रशांत इज 74. ओके बेटा. नेक्स्ट इज अंकुर शर्मा 22. अंकुर शर्मा 22. आयुष कुमार 28.
एक मिनट वेट, अभी मैं करवाती हूँ, रुको। मेहुल योर रोल नंबर इज 56, राइट? Yes, ma'am. Those who are जिनकी अटेंडेंस होती जा रही है ना, वो लीव करते हैं, इट विल बी इजी फॉर मी, राइट? मेहुल योर्स इज 84. यस, मैम ऋतिका रितिका 89. 89 ओके ऋतिका लीव. मैम 13 रोल नंबर एक मिनट. यस, ऋतिका. मोक्ष सर शर्मा 60. मोक्ष लीव. Yes, ma'am. Ayush Kumar 28. ओके आयुष लीव. यथार्थ 128. यथार्थ 128. 128. वेट, यथार्थ. मैम रूपल 97 रूपल 97 97. ओके रूपल. Manish 51. यस, नेक्स्ट. Manish 51. मनीष 51. ओके. Ma'am, Mahesh 49. यस, नेक्स्ट. मनीष लीव. यस, नेक्स्ट. Mahesh 49. महेश 49. यस, महेश लीव. Thank you. 113. सिद्धार्थ. ओके सिद्धार्थ. नेक्स्ट. विनय. 102 सरगुन यस, रुको. यस, और कौन? अक्षत. Roll number 12. अक्षत लीव. नेक्स्ट. 102 सरगुन एक बोल लो बेटा. यस, निकिता 70 निकिता 70. फ्रेंड्स नहीं हो क्या दोनों? नेक्स्ट. 102 सरगुन 102 सरगुन. ओके सरगुन लीव. ओके. मैम सागर 98. ओके सागर लीव. नेक्स्ट. Ma'am 15. 15 is okay. Amit Gambhir. Fine. मैम 24 24. 13 13 is Alisha. मैम 26. Aryan Yadav. Okay. मैम 24 एक मिनट बेटा, एक मिनट. 24 मार्क्ड मैंने कर दिया बेटा. निमिषा पॉल. ओके मैम नेक्स्ट. Ma'am 124. 124. जल्दी करो, अदरवाइज मार्क नहीं हो पाएगी. ओके नेक्स्ट. Ma'am 42. मार्क कर दिया मैंने. यस. मैम इशिता 40. इशिता 40. मैम 100. 10. इशिता लीव. 100. ओके मार्क. शहरश्री. ठीक है. ओके शहरश्री. नेक्स्ट. Ma'am 42. 42. जतिन कुमार. Yes, ma'am. नेक्स्ट. मैम 135. 135. मैम 109 109. यस. नेक्स्ट. विनय मार्क कर दी बेटा अटेंडेंस. यस. नेक्स्ट. मैम 135 सागर होगी. 99. सागर 89. ओके सागर लीव. 99. 99. ओके कर दिया मार्क. ओके नेक्स्ट. मैम 68 निहारिका. 68 निहारिका. ओके निहारिका लीव. नेक्स्ट. जल्दी बताओ बेटा. मैम 135 मार्क हो गई. 135. यस यू कैन लीव. संजय शर्मा. थैंक यू मैम. वेलकम. नेक्स्ट. यस. और कौन है पार्टिसिपेंट? प्लीज बताओ जल्दी. कृष्ण अवस्थी 47. ये रह ही जाएंगे. कृष्ण अवस्थी. रोहित
93. Akshat 19. CSC 12. Shivam Prasad 106. 106. Tarun 117. 47. Rohit 93. And Akshat. Yes, ma'am. Okay, Akshat, I have marked your attendance. Yeah, Shivam. आपने रोल नंबर लिख रखा था ना अपना? शिवम. Okay, ma'am. Shivam, you can leave. Okay, next is Tarun. Tarun, you can also leave. Right. Harika, Siraj, Alisha. Alisha हो गया. इशिता भट्ट हो गया. आर्यन यादव. आर्यन, अमित, निकिता, संजय हो गया. मेहुल 56. ऋतिका 89. ऋतिका 89. ऋतिका 89. And Mehul. Nikita.